Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 13 of your class 8 science, that is sound. So let's see question number 1. Choose the correct answer. Sound can travel through gases only, solids only, liquids only, solids, liquids and gases. So if your concept is clear then you can easily answer any kind of questions that comes in your exam. जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला है देखो, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू. जो साउंड है क्या वो गैसेस के थ्रू ओनली ट्रेवल होता है, क्या वो सॉलिड्स के थ्रू ओनली ट्रेवल होता है, या फिर लिक्विड्स के थ्रू, और द लास्ट वन इज सॉलिड्स के थ्रू में भी, लिक्विड्स के थ्रू में भी एंड गैसेस के थ्रू में भी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज sound can travel through solids, liquids and gases. So next is a question number 2. Which of the following voices is likely to have minimum frequency? Whether it is a baby girl or a baby boy, a man or a woman. So ये और एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है. आपको क्या बोलना है, इन चारों में से किन का वॉइस में जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम है. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको ईजिली आ जाएगा. जैसे देखो, बेबी गर्ल दैन बेबी बॉय, ए वुमेन, इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ए मैन. एंड अमॉन्ग दिस ग्रुप ए बेबी गर्ल्स वॉइस हैज़ द हाइएस्ट पिच. सो यहाँ पे देखो आप लोग आंसर कैसे लिखोगे. फर्स्ट तो आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ए मैन. Frequency of a sound is directly proportional to its pitch and inversely proportional to its amplitude. ये तो आपको पता होगा. The voice of an adult male is of lower pitch and high amplitude in comparison to the voices of a baby girl, a baby boy and a woman. The voice of a baby girl has highest pitch among this group. So next is a question number 3. In the following statements, tick T against those which are true and F against those which are false. So let's see one by one. Sound cannot travel in vacuum. The number of oscillations per second of a vibrating object is called its time period. If the amplitude of vibration is large, sound is feeble. For human ears, the audible range is 20 Hz to 20,000 Hz. The lower the frequency of vibration, the higher is the pitch. Unwanted or unpleasant sound is termed as music. Noise pollution may cause partial hearing impairment. So the first one is sound cannot travel in vacuum. By vacuum we mean space. So देखो ये जो given statement है is true because sound does not travel at all in space. तो इसके पीछे रीज़न क्या है देखो, वैक्यूम में कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है एंड वी नो दैट साउंड ट्रेवल्स थ्रू मीडियम. So since the vacuum has no material medium, therefore sound energy cannot propagate. So I hope it's clear. Part B. The number of oscillations per second of a vibrating object is called its time period. यानी कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में पर सेकंड में जितना नंबर ऑफ ओसिलेशंस होता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है. सो द गिवन स्टेटमेंट इज एक्चुअली फॉल्स. सो इसका करेक्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी. सो आपका सेकेंड स्टेटमेंट हो गया फॉल्स. सो नेक्स्ट इज अ पार्ट सी. इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, साउंड इज फीबल. यानी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड अगर लार्ज होगा तो साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो फीबल होगा यानी वीक. The given statement is false because if the amplitude of vibration is large, तब sound feeble नहीं होता, that is weak नहीं होता है. तो sound कैसा होता है, loud होता है. Okay. So next is a part D. For human ears, the audible range is 20 Hz to 20,000 Hz. The given statement is correct. क्योंकि जो ह्यूमन ईयर्स का जो ऑडिबल रेंज है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो कहाँ से कहाँ तक हम सुन पाते हैं, फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स. सो द गिवन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो नेक्स्ट इज अ पार्ट ई. द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच. यानी वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी जितना लो होगा पिच उतना ही हाई होगा. सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर होगा दैट pitch of a sound is directly proportional to the frequency. That is frequency जितना ज़्यादा होगा pitch भी उतना high होगा and frequency जितना कम होगा pitch भी उतना कम होगा. So the correct statement would be the lower the frequency of vibration,
The lower is the pitch and not higher. Okay. So next is a part F. Unwanted or unpleasant sound is termed as music. यानी यहाँ पे क्या बोला गया, म्यूजिक को क्या बोला गया है, अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड, यानी जो सुनने में एकदम भी प्लेजेंट ना हो, जो सुनकर आपको एकदम भी अच्छा ना लगे, तो क्या उसको म्यूजिक बोला जाता है. द गिवन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, दैट इज इट इज फॉल्स. So what would be the correct statement? Unwanted or unpleasant sound is termed as noise. Last one, noise pollution may cause partial hearing impairment, यानी noise pollution क्या cause कर सकता है, partial hearing impairment यानी सुनने में problem, that is hearing loss. The given statement is absolutely correct because if a person is exposed to prolonged loud noise, then it may cause hearing loss also. So next is a question number 4. Fill in the blanks with suitable words. First part, time taken by an object to complete one oscillation is called dash. यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उस ऑब्जेक्ट को, उसको क्या बोला जाता है. द करेक्ट आंसर इज टाइम पीरियड. सो नेक्स्ट इज अ पार्ट बी. Loudness is determined by the dash of vibration. सो द करेक्ट आंसर इज एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा लाउड उतना साउंड प्रोड्यूस होगा, एम्पलीट्यूड जितना कम होगा जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो कम होगा, दैट इज़ लो होगा. पार्ट सी, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डैश. तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्स. पार्ट डी, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड डैश. सो दिस वन तो वी ऑलरेडी डिस्कस, जो अनवांटेड साउंड है उसको बोला जाता है नॉइज. Last one, shrillness of a sound is determined by the dash of vibration. किसी भी साउंड का जो श्रिलनेस होता है वो किस चीज़ पर डिटरमाइंड होता है. श्रिलनेस से मतलब होता है, अगर हम लोग सिंपल वे में समझे, इट मीन्स लाउड एंड हाई. सो द करेक्ट आंसर इज फ्रीक्वेंसी. So next is a question number 5. A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Find its time period and frequency. एक पेंडुलम 4 सेकेंड में 40 टाइम्स ओसिलेट करता है, दैट इज़ टू एंड फ्रो मूवमेंट उस पर होता है. सो नाउ यू हैव टू फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. सो आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला. टाइम पीरियड का क्या है, टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उसको, 4 सेकेंड, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितना हुआ, 40 टाइम्स. सो द आंसर इज 0.1 सेकेंड्स. एंड फ्रीक्वेंसी का है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय टाइम टेकन, ठीक इसका ऑपोजिट, 40 divided by 4, that is 10 hertz. So next is a question number 6. The sound from a mosquito is produced when it vibrates its wing at an average rate of 500 vibrations per second. What is the time period of the vibration? यानी मस्क्यूटो जो अपने विंग को जब पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में 500 वाइब्रेशन करता है तब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. सो आपको सिंपली क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन फाइंड आउट करना है. सो वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला. सो टाइम पीरियड इज टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. टाइम कितना लगा पर सेकेंड, दैट इज 1 सेकेंड बाई 500. सो द करेक्ट आंसर इज 0.002 seconds. So next is a question number 7. Identify the part which vibrates to produce sound in the following instrument: ढोलक, सितार and flute. So ये आपके लिए होमवर्क है. You have to recognize कौन सा पार्ट वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस होता है इन फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स में. So first is ढोलक. ढोलक में क्या होता है, ढोलक has stretched membrane which vibrate to produce sound. Next is सितार. सितार में क्या होता है, stretched strings when vibrate they produce sound. एंड द लास्ट वन इज़ फ्लूट. फ्लूट क्या है, एक विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है विच यूजेस एयर कॉलम टू प्रोड्यूस साउंड. सो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा ये क्या है आपका ढोलक, जो मैंने डी से इंडिकेट किया. देन ये क्या है आपका फ्लूट, एंड दिस वन इज़ सितार. तो क्वेश्चन में जैसे बोलता कौन सा पार्ट वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो फर्स्ट आपको जैसे दिख रहा होगा ढोलक. तो ढोलक में क्या होता है, ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है एज यू गाइस कैन सी. इसको जब वाइब्रेट किया जाता है इस पार्ट को, तब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. दैन ठीक ऊपर आपको दिख रहा होगा फ्लूट. फ्लूट में क्या होता है, एयर कॉलम प्रेजेंट है, इसके थ्रू में साउंड प्रोड्यूस होता है. एंड इसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा सितार. सितार में क्या होता है, देखो स्ट्रेच स्ट्रिंग प्रेजेंट है, इसके वजह से क्या होता है, ये एक ऐसा पार्ट है जो वाइब्रेट होने के बाद साउंड प्रोड्यूस होता है. सो आई होप इट्स क्लियर.